See, this was the question which we have solved in last lecture till cost sheet. Now, in this sum, we have to make cost sheet as well as what? Financial profit and loss account also. So now we will going to prepare what? Financial P&L account, and after that reconciliation. Okay. So let's start. So now we have to make a financial P&L. So it's very simple. We have solved this sum till cost sheet. Now we have to make a financial P&L also, because it is asked here that you have to prepare financial profit and loss account also, right? So for preparing financial P&L account, these all the data are to be used, because these all the data are from financial accounts of a firm. So whatever expenses will be there, that will be debited. जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट कर दो, राइट है? इनकम और क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम, ऑल दैट. सो लेट्स मेक इट. कम ऑन. So everyone get ready to solve the sum. Chalo, let's start. चलो. So financial P&L. Yes. चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फाइनेंशियल P&L बनाने के लिए, तो बना दे रहा हूं मैं. ठीक है. फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस. बाकी लास्ट लेक्चर में इसको मैंने किया भी था, बट देख लो फिर से. फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. क्या बेटा? फॉर द ईयर एंडेड 31st December 31st December what? 2013. 31st December what beta? 2013. Okay. So this is what debit, credit. Chalo, particulars. Rupees. Particulars. Rupees. Okay. Particular rupees. Particular rupees. Chalo beta. Now whatever expenses are there, that will be debited. See the question और सारे expenses डाल दो. First क्या है आपका? Materials. So two materials. To material consumed. So material consumed आपका amount फाइनेंशियल बुक में देख रहे हो. ऊपर जो भी एडजस्ट, ऊपर के जो भी आइटम्स है उसमें देखो 520. Because whatever amount is given in the adjustment, that is what cost account का डेटा है, और जो ऊपर दिया वो फाइनेंशियल का डेटा है. फिर वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस. वेजेस इज गिवन 2,40,000. आफ्टर वेजेस व्हाट इज गिवन? फैक्ट्री एक्सपेंस. Factory 3,60,000. Very good. 3,60,000. फिर फैक्ट्री एक्सपेंस. आफ्टर फैक्ट्री एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंसेस 2 5 yes, administration expenses. So administration expense 5 lakhs. Selling After and admin distribution. expense, selling and Selling distribution. and distribution. 9,60,000. Very good. Selling and distribution expense. $9,60,000. Then selling and distribution के बाद 2 bad debts written off. बेटा ये फाइनेंशियल आइटम है तो फाइनेंशियल P&L में तो आएगा ही. 2 bad debts written off. कितना अमाउंट इसका? 40,000 है.
Yes. to bad debts return of 40,000 and to loss on sale of investment. What is the amount of this? To loss on sale of investment. इसका अमाउंट कितना है? 30. 30,000. ओके चलो डेबिट के सारे आइटम हो गए. क्रेडिट में यू ऑल नो, क्रेडिट में सबसे पहला क्या होता है बेटा? सेल्स. Buy राइट है. ट्रेडिंग याद रखो, ट्रेडिंग पीएनएल का ही पार्ट होता है, समझा कि नहीं? तो सेल्स, सेल्स कितना है? 19 लाख 20,000. फिर बाय बेटा, सेल्स के बाद क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक देखो क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 4 lakh. और फिनिश गुड्स भी दिया है अपने को पहले 4 लाख. देन बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है. बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000. by closing stock of work in progress 1,60,000. और क्या है बेटा? बाय इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है वो भी इनकम है. इनकम विल बी क्रेडिटेड, इनकम विल बी क्रेडिटेड. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड received. Expenditure debit, income credit, right? So interest and dividend received कितना है बेटा? 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. Okay, so all the debit item is here, all credit item is here. Now अब देखो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है आपका? Which side is heavier? बड़ा कौन सा है? डेबिट है कि क्रेडिट है? जरा टोटल मार के देखो. 26,50,000. Net loss 50,000. Okay, मतलब डेबिट ज्यादा है. So debit side is heavier. So we have to write in both side debit total because debit side is more. Right? डेबिट ज्यादा हुआ बेटा. डेबिट ज्यादा मतलब क्या होता है? लॉस. डेबिट बड़ा होगा तो लॉस ही होगा ना. कितना लॉस होगा? बैलेंसिंग फिगर निकाला. कितना आया? 50,000. 50,000. सो 50,000 का लॉस कैसे आया? 26,50,000 में से ये सब माइनस कर दो, ये चारों का टोटल. तो दैट इज व्हाट बाय, क्या बोलेंगे उसको? नेट लॉस. ये नेट लॉस आ गया आपका, जिसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर मतलब दिस माइनस ऑल दिस विल गेट 50,000. तो ये हो गया अपना नेट लॉस आ गया. अपने को क्या मिल गया बेटा? नेट लॉस. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा टाइम कम था इसलिए हमने उसको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा थोड़ा देखा था. तो आज हमने पूरा देख लिया. ये फाइनेंशियल पीएनएल है. ठीक है बेटा. अब आपने अगर किसी भी क्वेश्चन में, याद रखो, इन एनी क्वेश्चन इफ यू हैव मेड अ फाइनेंशियल पीएनएल अकाउंट, अगर आपने फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया तो आप स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल पीएनएल से ही लिया करो. याद रखना. नॉर्मली तो फाइनेंशियल पीएनएल का सम जल्दी आता नहीं है, कभी कभी आता है, बट याद रखो अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? फाइनेंशियल पीएनएल का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है वो. तो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? इधर फाइनेंशियल लॉस. कॉस्टेड भी बनाया, ये भी बनाया, पीएनएल भी बनाया, तो स्टार्टिंग पॉइंट पीएनएल का लेने का. ठीक है. हाँ, आप कॉस्टिंग का भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो फाइनेंशियल पीएनएल का ही स्टार्टिंग पॉइंट लो. समझा? चलो अब देखो, अब मेन जो गेम है वो स्टार्ट होगा अब. तो रिकंसिलेशन पहले बनाते हैं. आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन फिर बता दो. स्टेटमेंट बना लो पहले. फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन. स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन कभी है? एज ऑन क्या डेट है? 31 दिसंबर 2013. स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2013. 13.
Okay, 2 columns for amount, you all know. Number, particulars, rupees, rupees. ठीक है, चलो तो फर्स्ट वन स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहे बेटा आप? फाइनेंशियल पीएनएल में से दिख रहा, फाइनेंशियल बुक में से आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया है? लॉस। यहां लॉस है तो क्या लिखोगे? फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस। So this is what your starting point. फाइनेंशियल लॉस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइनेंशियल लॉस मतलब फाइनेंशियल बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तक क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता था? कॉस्टिंग बुक, राइट? अब यहाँ फाइनेंशियल बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो भी लॉस है, लॉस। ठीक है, तो कितना है लॉस अपना? 50,000, राइट? ये देखो 50,000। फाइनेंशियल लॉस है। ठीक है, अब वही फंडा सेम जैसा हम लोग करते हैं, ऐड और लेस। ठीक है, ऐड और लेस का फंडा सेम रहेगा। अब जरा बच्चों ध्यान देना, अब सबसे मेन चीज है बेटा, यहां लॉस है। हाँ, याद रखो, देखो लॉस स्टार्टिंग पॉइंट जल्दी आता नहीं है, बट याद रखो आ गया तो कैसे करना है। एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक याद रखो। आप कोई भी सीए एंटर, सीए फाइनल, आईसीडब्ल्यूए कोई भी आ जाए, किधर भी रिकंसिलेशन आ जाए, सब सम इजीली कर लोगे आप। ठीक है, तो देखो फाइनेंशियल लॉस है, सिंपल सा फंडा, जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो वो सेम फॉलो करने का, सेम स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो। अभी देखो फाइनेंशियल लॉस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? फाइनेंशियल बुक। तो अदर बुक कौन सा होगा? अदर बुक कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग के हिसाब से देखना है आपको, यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग बुक में प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस, सिंपल सा फंडा। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा रहेगा। लेकिन कभी भी याद रखो, अगर लॉस स्टार्टिंग पॉइंट लॉस है तो जो भी आंसर आएगा, फाइनली जो भी आंसर आएगा उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। बस जैसे आपका आंसर जो आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है प्लस, लेकिन लॉस स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए वो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन, और माइनस आया तो प्लस। तो उसके लिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूं क्वेश्चन के साथ, तो समझेगा। चलो ये इतना करके छोड़ दो, अभी आ जाओ पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और पहले क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वो समझ गया ना तो बाकी कुछ नहीं है। हाँ अभी वही बेटा, अभी वही समझा रहा हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन रहेगा सामने तो बराबर समझेगा। देखो ठीक है, अब आप लोग सामने अपना जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल पीनल सब निकाल के रखना। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए यूज होगा ना। फाइनेंशियल पीनल का तो इशू है ही नहीं, देखो फाइनेंशियल पीनल तो ये आपका फाइनेंशियल बुक ही है। ठीक है, और इधर आपका कॉस्ट रिकॉर्ड है। अब ध्यान से सुनना, जो अभी मैंने बोला ना उसको समझाने के लिए। देखो इधर ये आपका कॉस्ट अकाउंट है, मतलब कॉस्टिंग बुक, यहाँ कॉस्टिंग बुक के रिकॉर्ड है, और ये आपका फाइनेंशियल बुक है, ये रिकॉर्ड सारे फाइनेंशियल बुक के। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान देना, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट इधर मैं लिख दे रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल बुक है, फाइनेंशियल बुक, वो भी फाइनेंशियल बुक में फाइनेंशियल लॉस है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल। तो फाइनली आपको अदर बुक कौन सा देखना होगा? लास्ट में अदर बुक आपका आएगा कॉस्टिंग, कॉस्टिंग बुक। मींस आपको कॉस्टिंग बुक के हिसाब से काम करना है, यू हैव टू गो एज पर द कॉस्टिंग बुक, दैट्स इट। कॉस्टिंग बुक में प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस, सिंपल सा फंडा है बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखो, समझाता हूं मैं। अभी जो सेंटेंस बोला था ना, अब उसको यहां देखोगे, प्रैक्टिकली देखो कैसे समझता है। चलो सबसे पहले क्या करना है? क्या करते हैं हम लोग? जितने भी इग्नोर्ड आइटम है, इग्नोर, पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो इग्नोर आइटम में कौन कौन से अपने पास? ये बैड डेट्स, ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
और ये इंटरेस्ट रिसीव, ये 3 आइटम अपने इग्नोर वाले आइटम। चलो इग्नोर वाले आइटम का ट्रीटमेंट करते हैं, आ जाओ बेटा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल बुक। अदर बुक, अदर बुक कौन सा देखना है आपको? कॉस्टिंग। बस अब याद रखो कॉस्टिंग के हिसाब से काम करना है। अब बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो 2 आइटम है ये तो एक्सपेंडिचर आइटम है, ये एक्सपेंसेस है बेटा। बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? दीज 2 आइटम्स आर एक्सपेंसेस, लॉस, फाइनेंशियल लॉस है कि नहीं? अब बेटा ये आइटम कॉस्ट शीट में आता है क्या? आपको अदर बुक कौन सा देखना है? कॉस्ट शीट ही देखना है ना। ये दोनों आइटम कॉस्ट शीट में आप दिखाते हो क्या? नहीं। तो बेटा जब ये आइटम, ये लॉस का आइटम कॉस्ट शीट में दिखेगा नहीं तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम होगा क्या? कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम होगा? नहीं। तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना? हुआ कि नहीं? ज्यादा हुआ तो क्या हो गया? प्लस। सुनो अभी ध्यान देना जरा, ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? प्लस। लेकिन बट ये लॉस का केस है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपना? लॉस है। तो साइन क्या हो जाएगा? ये जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा? ये, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। खत्म। बराबर है? बस मतलब क्या हो गया? जैसा हम लोग करते हैं सब पूरा फंडा वही फॉलो करना है, पूरा स्ट्रेटेजी वही रहेगा अपना। फाइनली साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट। दैट्स इट। क्योंकि ये लॉस का केस है और लॉस में आंसर नेगेटिव होता है, बराबर है? नेगेटिव होगा तो नॉर्मल सी बात है, साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है? तो सिंपल सा फंडा याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? अगर लॉस का केस हुआ तो फाइनली आपका साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है? देखो फिर से पढ़ो, देखो सिंपल सा फंडा। देखो बेटा जैसा आप लोग फॉलो करते हो सेम वैसा ही करो। अब ये दोनों लॉस का, ये दोनों क्या है बेटा? आपका लॉस है। ये दोनों एक्सपेंडिचर है ना, दोनों एक्सपेंडिचर है। आपको अदर बुक कौन सा देखना है? अदर बुक। अदर बुक कौन सा देखना है आपको? कॉस्टिंग। बेटा ये एक्सपेंडिचर, ये जो फाइनेंशियल लॉस है, बैड डेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कॉस्टिंग बुक में आता है क्या? ये कॉस्टिंग बुक में नहीं आता। तो बेटा जब खर्चा कॉस्टिंग बुक में आएगा ही नहीं तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। खर्चा आप कॉस्टिंग बुक में दिखाओगे नहीं तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा। ज्यादा दिखाएगा मतलब क्या? प्लस। ज्यादा दिखाएगा मतलब आंसर क्या आया? प्लस। बट लॉस का केस है। कौन सा केस है ये? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? लॉस। तो लॉस में क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। बस और कुछ करने का। अब देखो ये हो गया सेकंड वाला केस। देखो देखो अभी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है। क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। ये कौन सा आइटम है? एक्सपेंस है कि इनकम है? दिस इज व्हाट? इनकम। ये इनकम है, पता है ना सबको। क्रेडिट आइटम होता है इनकम। आपको अदर बुक कौन सा देखना है? अदर बुक। अदर बुक आपको देखना है कॉस्टिंग बुक। यू हैव टू सी अदर बुक। व्हाट? कॉस्टिंग बुक। बेटा ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड आपका कॉस्टिंग में आता है क्या? नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट? फाइनेंशियल आइटम। ये कॉस्ट शीट में आप दिखाते नहीं हो। बेटा अगर आपने कॉस्टिंग बुक में नहीं दिखाया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप इनकम दिखाओगे नहीं तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। क्योंकि प्रॉफिट आपका ज्यादा शो नहीं करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। राइट है? क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फाइनेंशियल आइटम है, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता। तो ये इनकम अगर कॉस्ट शीट में नहीं आएगी तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही नहीं। तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस। बराबर है? क्या हो गया? माइनस। बट ये कौन सा केस है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? लॉस है ना। तो साइन क्या कर दो? अपोजिट कर दो। मतलब माइनस था, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब सीधा जो भी आंसर आएगा, मतलब जो आप पहले से करते आ रहे हो ना, सब पूरा सेम फंडा करना है, सेम। सिर्फ साइन क्या करना है आपका? जो साइन आएगा वो अपोजिट कर दो बस। बाकी सब वही चीज है जैसा पहले करते आ रहे हो। सेम फंडा, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। साइन लास्ट में अपोजिट हो जाएगा, खत्म। बराबर? चलो अब देखो ये तो ठीक है, इग्नोर वाले आइटम हो गए। अच्छा नेक्स्ट, अब कौन सा डिफरेंस होगा? यहां एडजस्टमेंट और ऊपर के आइटम में, मतलब कॉस्टिंग बुक में और फाइनेंशियल बुक में। चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? कॉस्टिंग बुक में डायरेक्ट मटेरियल है 5,70,000
और फाइनेंशियल बुक में जरा देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 5,20,000। ठीक है, अब सुनो मटेरियल क्या है बेटा आपका एक्सपेंडिचर। मटेरियल क्या है आपका, मटेरियल इज व्हाट योर एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का अमाउंट कॉस्ट शीट में ज्यादा है और आपको अदर बुक कौन सा देखना है, अदर बुक यहाँ कौन सा देखना है कॉस्टिंग। ठीक है, अदर बुक कौन सा देखना है कॉस्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल बुक है तो अदर बुक क्या हो जाएगा कॉस्टिंग। चलो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा है, कॉस्टिंग में खर्चा दिख रहा है ज्यादा है। इफ एक्सपेंडिचर इज मोर तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग माइनस, बराबर आंसर आ गया ना, प्रॉफिट कम हुआ तो क्या करेंगे माइनस। बट लॉस का केस है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपना लॉस, तो साइन अपोजिट कर दो, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा प्लस, दैट्स इट। फिर सेकंड देखो क्या है अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या दिया अपने को फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था कॉस्ट शीट में, जरा अमाउंट चेक करना, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना है भाई 1,62,000, इसका अमाउंट था 1,62,000। ठीक है, कॉस्ट शीट में आपका फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या हुआ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है बेटा 1,62,000। ठीक है, फाइनेंशियल बुक में जरा देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, फाइनेंशियल बुक में ये रहा 3,60,000। बेटा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग बुक में 162 है, फाइनेंशियल बुक में 3,60,000। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या हुआ खर्चा। आपको अदर बुक कौन सा देखना है, अदर बुक आपका कौन सा है कॉस्टिंग बुक। अब नॉर्मल सी बात है बेटा कॉस्टिंग बुक में आपका खर्चा कम है, खर्चा कम है ना, कॉस्टिंग बुक में दिख रहा है कि नहीं, देखो खर्चा इधर 360 है, फाइनेंशियल बुक में 3,60,000, कॉस्टिंग में कितना है 1,62,000। तो कॉस्टिंग बुक में आपका खर्चा कम है, खर्चा कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या करते हैं हम लोग प्लस, है कि नहीं, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या करते हैं प्लस। बट लॉस का केस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट लॉस है तो साइन क्या हो जाएगा अपोजिट, तो प्लस का क्या हो जाएगा इधर माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। सिंपल फंडा, सेम वही फंडा फॉलो करना है। नेक्स्ट देखो एडमिन एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंडिचर है, एडमिन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है। एडमिन एक्सपेंसेस का जरा कॉस्ट शीट में अमाउंट कितना आया था वो चेक करो, एडमिन एक्सपेंस 6,40,000, यही है ना 6,40,000, एडमिन एक्सपेंस 6,40,000। ठीक है, चलो अब ऊपर देखो फाइनेंशियल बुक में अमाउंट कितना है इसका, फाइनेंशियल बुक में इसका अमाउंट है 5 लाख। अब देखो आपको अदर बुक कौन सा देखना है बेटा, अदर बुक आपको देखना है कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग में खर्चा दिख रहा है कितना है 6,40,000 और फाइनेंशियल बुक में 5 लाख है, तो अदर बुक मतलब कॉस्टिंग बुक, कॉस्टिंग बुक में आपका खर्चा ज्यादा है। इन कॉस्टिंग बुक योर एक्सपेंडिचर इज मोर। अगर कॉस्टिंग बुक में एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो क्या करना है अपने को माइनस, प्रॉफिट कम होगा तो क्या करना है माइनस। बट ये कौन सा केस है लॉस का केस है, तो साइन क्या हो जाएगा अपोजिट, माइनस आया था अपना आंसर, अपोजिट साइन कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। मतलब सेम वही फंडा, सब कुछ सेम फॉलो करना है, फाइनली जो भी होगा आंसर आएगा, साइन उल्टा कर दो बस, साइन अपोजिट कर दो। नेक्स्ट अपना क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। याद रखना प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सम है, प्रोफेशनल एग्जाम का, नॉर्मली प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत आता है, राइट है। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेयर टेकन एट 6.5। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जरा कॉस्ट शीट में देखना कितना अमाउंट था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है हमने जो बनाया था 7,80,000 है क्या, ओके 7,80,000। ठीक है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी तो आपका खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर है, 7,80,000 है, एक्सपेंडिचर का अमाउंट 7,80,000 है। जरा इसमें देखो फाइनेंशियल बुक में किधर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो फाइनेंशियल बुक में आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 9,60,000।
अब जरा देखना, अदर बुक कौन सा देखना है? अदर बुक अपने को कॉस्टिंग, अदर बुक कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में खर्चा क्या है कंपेयर करो इससे, 7,80,000 और 9,60,000, कॉस्टिंग में खर्चा कम है बेटा। हाँ, कम। कॉस्टिंग में खर्चा अगर कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट राइज होगा, प्रॉफिट क्या होगा? राइज। तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या करना है? प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करो? प्लस। प्रॉफिट बढ़ा तो क्या करना है अपने को? प्लस। प्लस बट साइन but- अपोजिट। लॉस का केस है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल फंडा, सेम फंडा फॉलो करके अपने को करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सम। अब सुनो, एडजस्टमेंट में एक आइटम ऐसा है जो दिया नहीं है लेकिन उसका ट्रीटमेंट होना ही है, वो कौन सा आइटम है? बोलो। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक, मैं इधर लिख देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में देखो, फाइनेंशियल बुक में तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको पता है, और क्लोजिंग स्टॉक किसका याद रखो? फिनिश गुड्स का खाली। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको पता है कितना है? 4 लाख है। बट कॉस्ट शीट में, कॉस्टिंग बुक में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? किधर है भाई क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट? कॉस्ट शीट में 3,63,000 है, 3,63,000। और आप सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट आइटम। कौन सा आइटम है ये? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आइटम होता है बेटा? क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट आइटम। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका कौन सा आइटम होता है बेटा? क्रेडिट आइटम। इधर मैं लिख देता हूं, ये कौन सा आइटम होता है? क्रेडिट आइटम। आपने फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस बनाया ना, देखो ना उसमें क्रेडिट में दिखाया आपने बेटा। क्रेडिट आइटम मतलब कौन सा आइटम? इनकम का आइटम, इनकम। अब जरा देखो कॉस्ट शीट में आपको अदर बुक कौन सा देखना है? अदर बुक कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक है 3,63,000 और फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख। अपने को कौन सा बुक देखना है? अदर बुक कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग बुक। तो कॉस्टिंग बुक में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कम है, कॉस्टिंग बुक में क्लोजिंग स्टॉक कम है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम का आइटम, क्रेडिट आइटम मतलब एज्यूम करो इनकम आइटम। बेटा इनकम अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, इनकम कम होगा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कम होना ही है ना। तो बेटा इनकम कम मतलब ये दिख रहा है इधर 3,63,000 कम है ना। कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कम है मतलब इनकम कम हो जाएगा। क्रेडिट आइटम मतलब इनकम आइटम, और क्रेडिट आइटम कम मतलब इनकम भी कम, और इनकम कम तो प्रॉफिट कम। तो प्रॉफिट कम हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा? माइनस। बट साइन अपोजिट। लॉस का केस है, स्टार्टिंग पॉइंट लॉस है इसलिए साइन अपोजिट कर दो, तो माइनस का क्या हो जाएगा अपना? प्लस। बराबर है, मालूम पड़ा। और जो भी डिफरेंस आएगा दोनों अमाउंट में वो करना है। तो ये है आपका बेटा लॉस का सम, जो कि प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत आता है। आपके एग्जाम में बीकॉम लेवल में बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन फिर भी करके रखने का, मालूम रखने का कि क्या होता है फंडा, समझा? सिर्फ साइन अपोजिट होता है। तो ये हो गया आपका सम डिस्कस। अब क्या करना है? अब तो कर ही दोगे सब अपोजिट, मतलब जितना भी है सब खाली आपको प्रेजेंट करना है बस। तो आ जाओ, हम लोग थे ही, तो चलो लेट्स प्रेजेंट इट। अच्छा प्लस के आइटम देख लेते हैं कितने अपने पास। 1 2 3 4 आइटम्स टू बी एडेड। माइनस के कितने हैं? 1 मतलब ये बेड डेस और लॉस ऑन सेल दोनों मिला के दो आइटम हो गया इधर। 2 आइटम्स आर देयर और 3 4 वाओ 4 items are to be added, 4 items are to be deducted. आ जाओ, now let's solve it. तो हमारा यहाँ ऐड हो ही गया था। चलो तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं। पहला आइटम ऐड करने के लिए अपना क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड credited only in फाइनेंशियल अकाउंट। चलो कितना अमाउंट है? 1,20,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। सेकंड अपना कौन सा है? लाइन वाइज जाओ। क्लोजिंग स्टॉक था अपना, क्लोजिंग स्टॉक का भी एडजस्टमेंट है, बराबर है। उसके पहले और कौन सा है? मटेरियल है और एडमिन ओवरहेड्स। तो आ जाओ मटेरियल। मटेरियल का क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड ओवर रिकवर्ड किया आपने,
मटेरियल कंज्यूम ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। भाई ओवर ज्यादा ही लिया ना, देखो कॉस्ट अकाउंट में 5,70,000 लिया है और फाइनेंशियल बुक में 520 है, तो ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। चलो कितना अमाउंट का डिफरेंस ले लो, 20,000. तो डिफरेंस 570 माइनस 520, तो कितना हो गया बेटा 50,000। वेरी गुड, 50 है ना। चलो नेक्स्ट अपना, उसके बाद क्या है, मटेरियल के बाद एडमिन ओवरहेड्स है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओवरहेड है तो वही सेम वर्ड, ओवर रिकवर्ड या ओवर एब्जॉर्ब। अब एडमिन ओवरहेड क्या हुआ है, ओवर एब्जॉर्ब्ड हुआ है, या आप ओवर रिकवर्ड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, बट हम लोग ज्यादा करके ओवरहेड्स के लिए ओवर एब्जॉर्ब वर्ड यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो आप। ओवर एब्जॉर्ब्ड इन एडमिन ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट। और ओवरहेड आया तो कॉस्ट अकाउंट ही दिखना चाहिए, कॉस्ट अकाउंट। चलो कितना है ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट, दोनों का डिफरेंस ले लो। सो एडमिन का 640 और 5 lakhs, 6,40,000 और 5 lakhs, कितना आ गया 1,40,000। 140. उसके बाद अपना कौन सा आइटम है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो फाइनेंशियल अकाउंट के पर्पस के हिसाब से ही लिखते हैं हम। तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल चलो कितना डिफरेंस, 4 लाख माइनस 3,63,000, 4 लाख माइनस 3,63,000, तो डिफरेंस कितना आ गया 37। चलो ये सबका टोटल मारो, कितना आ रहा है, यस आई कैन सी द आंसर, वेरी गुड, 3,47,000। 3,47,000. बाकी सब ओके। फिर उसके बाद 50,000 प्लस 3,47,000 कितना आ गया टोटल, 397। चलो अब अपने को लेस वाले आइटम। चलो उसके पहले सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो, फर्स्ट एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट। फिर अभी इधर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो लेस वाले आइटम, नाउ लेस, सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो, डोंट मिस इट, मिस मत करो। अब लेस में पहला क्या है, इग्नोर्ड वाले आइटम, बैड डेट्स। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, bad debts written off debited only in financial account, debited only in financial account। चलो कितना है वो 40,000। 40,000. फिर दूसरा क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट debited only in financial account, debited only in financial account। ये कितना है 30,000। 30. फिर उसके बाद क्या अपना, आफ्टर दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है जरा देखो, फैक्ट्री ओवरहेड अपना कॉस्ट शीट में था 162, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट। चलो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है 3,60,000 और 162, 1,98,000. 1,98,000। वेरी गुड। फिर अपना क्या नेक्स्ट, लास्ट वन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9,60,000 1,80,000. माइनस 7,80,000, कितना 1,80,000। अब ये सबका टोटल कितना आ रहा है
4,48,000 आ रहा है। वेरी गुड। अब फाइनली आंसर देखो बेटा, ध्यान देना इधर। अब देखो इधर पीछे कितना है 397 और ये 448, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। अब इधर नेगेटिव मतलब क्या, ये देखो ये क्या था, लॉस था ना। अब लॉस से अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा बुक, Profit. अदर बुक कौन सा आएगा, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट आ जाएगा आंसर अपना, कॉस्टिंग प्रॉफिट 51,000। अब ये देख लो, कॉस्ट शीट में चेक कर लेना, कॉस्ट शीट में 51,000 आपको दिखेगा, मतलब राइट है। नॉर्मल सी बात है ना, ये नेगेटिव है, लॉस है, और उसके बाद नेगेटिव आंसर आएगा तो लॉस का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर प्रॉफिट हो जाएगा, दैट्स इट। तो अदर बुक कौन सी होगी, कॉस्टिंग, और नेगेटिव हो गया लॉस का, नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, खत्म। तो ये 51,000